so for this question, for any natural numbers m, n, and k, m and k natural numbers, so first important part, k divides both m plus 2n, k divides both m plus 2n and 3m plus 4n. Okay, so k must be a common divisor of what? Now k divides m plus 2n and 3m plus 4n. Can I say it will individually divide both of these things? m इस equation में first में k is a factor of m as well as k is a factor of 2n. Similarly, k is a factor of 3m and k is a factor of 4n. This was the only logical step in this question, only logic that you need to apply. So now consider it like this. K is a factor of m as well as 3m, right? So k is a factor of m and 3m, right? So k will be a multiple, right, of LCM of m and 3m. ये कैसे हुआ? K is a factor of both these things, right? Sorry, not LCM, HCF. K is a factor of both these things. So K will be a multiple of HCF of m and 3m, right? So K will be a multiple of HCF of m and 3m. M and 3m का HCF is clearly m. So K will be a multiple of m. It can be m, 2m, 3m, जो भी है. ठीक है, we don't know. But it will definitely be a multiple of m. Similarly, K will be a multiple of HCF of 2n and 4n. So HCF of 2n and 4n is 2n, right? So K divides 2n, right? So K is a factor of m and 2n, which is our option number 2. एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्वेश्चन. स्टार्टिंग तो बहुत इजी है. लेट के बी द लार्जेस्ट इंटीजर सच दैट द इक्वेशन ये प्लस 2kx प्लस 11 हैज नो रियल रूट्स. ओके, सो x minus 1 का स्क्वायर प्लस 2kx plus 11 is equal to 0 has no real roots. That means I'll open this. X square minus 2x plus 1 plus 2kx plus 11 is equal to 0 has no real roots. X square plus 2k minus 2x plus 12 is equal to 0. No real roots. No real roots में क्या होता है? B square is less than 4ac. So let's use that. 2k minus 2 का square is less than 4 into 1 into 12. Right? Or I can write it as 4 into k minus 1 का square is less than 4 into 12. 4 get cancelled. K minus 1 square is less than 12. Right? K is the largest integer possible. Right? 12 से सबसे छोटा स्क्वायर क्या होता है? 3. So k minus 1 should be 3. That means k should be 4. 12 से सबसे छोटा स्क्वायर 3 का होता है. 3 square is 9. है ना? So my k minus 1 should be 3. That means k should be equal to 4. This is the largest integer possible. राइट? अभी तक तो कोई डाउट नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन था, बेसिक सा मैथ्स चल रहा है. नेक्स्ट पार्ट, k बाई 4y प्लस 9y को मिनिमम करना है. तो पहले तो k की वैल्यू डाल देते हैं 4. तो दिस गिव्स मी 1 बाई y प्लस 9y. आई हैव टू फाइंड द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू, है ना? नाउ let's forget about 9y for a while. Let's look at 1 upon x and x, है ना? If I talk about integers, है ना, जैसे जैसे मेरा x बढ़ेगा, है ना, वैसे वैसे कम होगा. फॉर एग्जाम्पल, when x is 1, this is 1 plus 1. When x is 2, this is half plus 2. When x is 3, this is half plus 3. 1 by 3 plus 3, है ना. 2 है, ये 3 by 2 है, सॉरी 5 by 2 है. This is 10 by 3, 3 point something. This is 2, this is 2.5, this is 3.33. मेरा नंबर बढ़ रहा है ना. आफ्टर this step my number is increasing. Similarly, if I go down, है ना, 1/2 fractions में जाते हैं, suppose, right? If I put 1/2 here, this will become 2, and if I put 1/2 here, this will become 1/2. That will again give me 2.5. So अगर मैं fraction में जाऊंगा, this part will keep on increasing, है ना.
So the logic is minimum value is at 1, है ना, when both of these are equal, when it's 1 by x plus x. अब इधर लेकिन है 1 by y plus 9y. But logically, the least possible value should be when both these things are equal. And is 1 by y is equal to 9y, which means 9y square is equal to 1, which gives us y square is equal to 1 by 9, and y is equal to 1 by 3. At this point, my value should be minimum. है ना? Let's see. When I put 1 by 3, this becomes 3, and this also becomes 3, which is 6. दिस शुड बी माई मिनिमम वैल्यू. कोई और वैल्यू डाल के चेक करना है तो चेक कर लो. 1 डालोगे तो ये 9 आ जाएगा, है ना. 9 + 1 10 होता है. 1/2 डालोगे तो 4.5 एंड 2 6.5, है ना. 1/4 डाल दिया अगर तो 4 + 2.15 2.25, दैट इज 6.25, है ना. तो वापस वो बढ़ ही रहा है, राइट. सो द लॉजिक सेज लीस्ट पॉसिबल वैल्यू इन सच अ केस इज ऑलवेज व्हेन दीज टू टर्म्स आर इक्वल. दैट इज द मैथमेटिकल लॉजिक. और वो टीम टर्म इक्वल बनाया, उसके वजह से y इज 1/3 आया. y इज 1/3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो 3 + 3 यानी 6. दैट इज माई फाइनल आंसर एंड द करेक्ट आंसर. राइट, डन. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. Any non-zero real numbers x comma y such that y is not equal to 3 and x by y is less than x plus 3 plus y minus sorry upon y minus 3. Right, what do I do here, है ना. uh, in this case, this particular question, I think फर्स्ट डिनोमिनेटर हटाना बेटर है. ठीक है. सो रिमेंबर बीच में इनइक्वालिटी है. ठीक है, इक्वल टू नहीं है, इट्स एन इनइक्वालिटी. सो जब भी मैं डिनोमिनेटर्स क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू दैट डायरेक्टली, राइट. वाई, आई विल गिव एन एग्जांपल. व्हाट डू आई मीन बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग? आई एम बेसिकली डूइंग दिस, राइट, कि इधर का y कट जाएगा एंड y इधर चला जाएगा. बट व्हाट इफ y इज नेगेटिव, है ना. इफ y इज नेगेटिव दिस साइन विल चेंज, राइट. दैट इज व्हाई आई कैन नॉट डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली, राइट. बट लेट्स से आई एम अज्यूमिंग y इज नेगेटिव, है ना. आई एम अज्यूमिंग y is less than 0, which is my third option. I'm assuming that. Okay. So when I do x by y into y, my sign will change to greater than, because I'm multiplying by a negative number, right. So ये y कट गया, इधर into y है. And then I multiply by y minus 3, which is also negative. So x into this will come y minus 3. Again sign will change, है ना. x plus 3 upon y minus 3 into y minus 3, right. So this becomes xy minus 3x is less than xy plus 3y. xy will get cancelled. Minus 3x is less than 3y, which gives me minus x less than y, which is my option number 3. Right? Now you'll ask, what if y is greater than 0? है ना. y greater than 0 में क्या होगा? पहले तो वैसा ऑप्शन नहीं है मेरे पास. उसके बाद भी एक वैल्यू मुझे लेनी पड़ेगी, ये 0 इज लेस देन y इज लेस देन 3. बिकॉज उस केस में व्हेन आई मल्टीप्लाई बाय y, उस टाइम पे साइन चेंज नहीं होगा बिकॉज दैट इज पॉजिटिव. बट व्हेन आई मल्टीप्लाई बाय y माइनस 3, उस टाइम पे साइन चेंज होगा बिकॉज y माइनस 3 विल बिकम नेगेटिव, राइट. सो वन वैल्यू विल बी दिस एंड आई विल हैव टू फाइंड दिस. तो ये 3 कंडीशंस है मेरे पास जिसमें मुझे चेक करने हैं एक्चुअली. नेक्स्ट लास्ट 2 कंडीशन में कुछ ऑप्शन दिए ही नहीं है, सो आई वोंट बॉदर गोइंग देयर. सॉरी, नॉट ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0. दीज आर द 3 कंडीशंस व्हिच आई हैव टू चेक, है ना. फॉर लास्ट 2 कंडीशंस की मुझे कहीं पे बात ही नहीं हुई है, सो आई एम ओनली चेकिंग द फर्स्ट वन, राइट. एंड इफ आई गेट माय रिक्वायर्ड कंडीशन, minus x is less than y. All right, next question. A n and B n be two sequences such that a n is equal to
13 plus 6 into n minus 1, and bn is equal to 15 plus 7 into n minus 1. Okay. Largest three-digit integer that is common to both these sequences. Okay. Um, let's say a1 is what? 13. ठीक है, 1 minus 1 is 0. a2 is 2 minus 1 is 1. 1 into 6, 6. 19. a3 will be 25 and so on. क्लियरली दिख रहा है 6 का एपी है ना? दिस इज एन एपी विथ कॉमन डिफरेंस एज 6, राइट? 31 and so on. Similarly, b1 is 15, b2 will be 22. This is also an AP, है ना? Same ही logic है. 29, b4 is equal to 36 and so on. This is also an AP with common difference of 7. Done. So let's find the first term common to these sequences. Next term 37, next term 43, and इधर भी next term 43. 43 term तो दोनों में आ गई, है ना? 43 is the first common term in both the sequences. Now next common term निकालने के लिए बहुत सिंपल है. क्या ऐड करूंगा मैं? I'll add the LCM of 6 and 7, right? यानी 42. 42 के डिफरेंस में अगर मैं 42 ऐड करूंगा 43 में 42, 95. 95 will also be in both the APs. Similarly, एक और बार 42 ऐड किया, नंबर 137 will be in both the APs. तो बेसिकली माई दिस इज अगेन एन एपी, है ना? जहाँ पे फर्स्ट टर्म इज 43 एंड कॉमन डिफरेंस इज 42. इसका मुझे लार्जेस्ट थ्री डिजिट इंटीजर निकालना है ना? ट्राई एंड एरर से कर लो. 420 है ना? 10 10 बार तो कर दिया. 840 हुआ. 84 और कर दो. 22 टाइम्स तो मैं कर चुका हूँ. 840 प्लस 84 इज 9. 840 84 924, right? And if I add this 43, it's giving 967. When I take n is equal to 22, I'm getting 967, है ना? If I add one more 43, it will become 1010, which will be more than 1000, which not a three-digit number. Sorry, if I add a 42, it will be 1009, more than 1000. So I cannot use that, right? So largest three-digit number is 967. बहुत बार ऐसे क्वेश्चन हमने बुक्स में भी किए हैं, है ना? बुक्स में बहुत कॉमन क्वेश्चन है कैट मटेरियल में कि फर्स्ट यू फाइंड द फर्स्ट कॉमन टर्म एंड देन यू नो दैट द नेक्स्ट कॉमन टर्म विल बी आफ्टर द एलसीएम, विच इज 42. हर 42 में ऐड करता जाऊंगा तो मेरे को नेक्स्ट कॉमन टर्म मिलता जाएगा, है ना? तो कब तक मैं मुझे ऐड करना है, खाली वो निकालना था. डन. दैट्स इट. दिस इज very easy question. Let's go to the next question now. All right. Let both series A1, A2, A3 and B1, B2, B3 and so on be an arithmetic progression such that common difference of both the series are prime numbers. Okay. A5 is equal to B9, A19 is equal to B19, B2 is equal to 0. And I have to find A11. Okay. B2 is equal to 0. I can say B2 क्या होता है? B plus एक बार D, है ना? So I can say difference in the अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ये वाला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस मैंने लिखा है डीबी एंड दिस. इसका मैं कॉमन डिफरेंस जब यूज करूंगा आई राइट इट एज डी ए, राइट? इज इक्वल टू माइनस बी. ओके, चलो. नाउ b2 इज इक्वल टू 0. व्हाट इज b9? b9 इज नथिंग बट b plus 8d, right? Or I can say I can write it as b is equal to minus difference of b. This will become minus difference of b plus 8d or 7 difference of b. b9 is 7 difference of b. This is equal to a5 yani a plus 4d. Similarly, b19 will come out to be 17 difference of b. It will be equal to a19 yani a plus 18d difference of a. Let's subtract these two equations. 10 times difference of b is equal to a कट जाएगा
है ना। 18 - 4 is 14, डिफरेंस ऑफ ए 5 7, 5 टाइम डिफरेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 7 टाइम्स डिफरेंस ऑफ ए. नाउ आई एम टोल्ड द कॉमन डिफरेंसेस ऑफ बोथ द सीरीज आर प्राइम नंबर्स. सो एक ही पॉसिबिलिटी है वेर डी ए इज इक्वल टू 5 एंड डिफरेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 7. दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी जब ये दोनों इक्वल होंगे, बिकॉज दे बोथ आर प्राइम नंबर्स. राइट, डन. तो डिफरेंसेस आ गए. नाउ लेट्स यूज दिस इक्वेशन. 49 is equal to a plus 20, और आई कैन से a is equal to 29. फाइंड करना है a11, यानी a प्लस 10 टाइम्स डिफरेंस ऑफ a, और 29 प्लस 10 टाइम्स 5, है ना. 29 प्लस 50 यानी 79, विच इज माई फाइनल आंसर. राइट. बहुत मैथमेटिकल क्वेश्चन, एकदम बेसिक सा, है ना. एक के बाद एक स्टेप्स आ रहे थे. नो, कहीं पे कुछ ऐसा ब्रेक या लॉजिक या कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी, है ना. डायरेक्टली एक के बाद एक स्टेप्स आ रहे थे. डन. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑलराइट. A, B, M and N be natural numbers such that A greater than 1, B greater than 1. A raised to M, A, sorry, A raised to M into B raised to N is equal to 144 raised to 145. Right? So let's break down 144 raised to 145. I know this is 12 ka square, all right, which will be 12 raised to 290, and then this is 2 square into 3, 12 होता है. So this will become 2 raised to 580 and 3 raised to 290. Correct? अब important step, largest possible value of n minus m. n माइनस m की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू आएगी जब n लार्जेस्ट होगा, राइट, एंड m स्मॉलेस्ट होगा. इस क्वेश्चन में खाली एक अच्छा लॉजिक था और बहुत इंटरेस्टिंग लॉजिक है. n लार्जेस्ट हमको क्लियरली दिख रहा है, लार्जेस्ट पावर इज 580, 2 से बड़ी किसी की पावर नहीं होगी, है ना. सो आई कैन से कि मेरा b2 है और उसकी पावर यानी n 580 है. ठीक है, तो ये पार्ट तो मेरा सॉल्व हो गया. अब बचा a⁻m, राइट. बहुत लोग इसमें करेंगे कि a3 एंड m 290, विच विल बी रॉन्ग. Why can't I just assume a as 3 raised to 290 and m as 1? A can be any natural number, कितना भी बड़ा हो सकता है, राइट. सो a is this huge natural number और जिसका पावर खाली 1 है. सो m की वैल्यू आई, स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 1. सो n minus m will be, my largest possible difference will be 580 minus 1, which is 579. ऑप्शन 1. इंपॉर्टेंट स्टेप इस क्वेश्चन में कि आपको a को पूरा 3 raised to 290 अज्यूम करना है ना. m को स्मॉलेस्ट रखना है, तो मैं a को कितना भी बड़ा नंबर दूंगा. डन. ओके, सो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वाज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. व्हेन यू रीड द क्वेश्चन, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x satisfying 2 raised to 4x square, 2 raised to 2x square plus x plus 16, then 2 raised to 2x plus 30 is equal to 0. राइट. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बिकॉज देखने में डायरेक्ट लॉग का क्वेश्चन लगता है, बट एक्चुअली लॉग कहीं यूज होगा नहीं इस क्वेश्चन में. ठीक है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. लेट्स स्टार्ट बाय टेकिंग वो -2 raised to जो है उसको मैं दूसरी साइड पे ले जाता हूँ, इधर प्लस वाली टर्म्स रहने देता हूँ. ठीक है. डन. ओके. नाउ सिंस बीच में प्लस है, आई कैन नॉट मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट और एनीथिंग, राइट. what I can do is take something common, right. So 2x plus 30 अगर मैंने कॉमन निकाल लिया, तो 4x² में से -2x - 30 हो जाएगा, एंड दिस विल बी 1. 2x² plus x plus 16. Now when this goes to the other side of the of equal to, वो डिवाइड में चला जाएगा, right. So 2 raised to 4x² minus 2x minus 30 plus 1 is equal to, sorry, 2 raised to 2x² plus x plus 16, right, अपॉन प्लस 16 है खाली, अपॉन 2 raised to 2x plus 30. अब डिवाइड में है तो आई कैन सब्ट्रैक्ट द पावर्स, राइट.
plus 1 is equal to 2 raised to, when I subtract, it will become 2x square minus x minus 14. Correct? Now, इधर तक अगर आपका इक्वेशन आ गया है, नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट, राइट? नाउ द इम्पोर्टेंट लॉजिक हियर इज, this will give me an even number. Agar this is any power of 2, will give me an even number. This is an odd number. This is again an even number. Can even plus odd ever be even? है ना, even plus odd कभी भी even number नहीं बनता है. So definitely, है ना, there is only one possibility that this power is equal to 0. तभी 2 raised to 0 यानी 1 plus 1 2 बनेगा, यानी this power is equal to 1. This is the only possibility here. एंड यही लॉजिक इंपॉर्टेंट था कि इवन प्लस ऑड कभी भी इवन नहीं बनता. ना कोई भी एक इक्वेशन सॉल्व करो, दे बोथ आर द सेम इक्वेशन व्हेन यू सॉल्व देम, राइट? 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, यानी 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 15 इज इक्वल टू 0. और आई कैन सॉल्व 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 14 इज इक्वल टू 1. 2x स्क्वायर अगर 1 इस साइड ले लूँ, राइट, दोनों सेम ही चीज़ है ना? तो कोई भी एक इक्वेशन सॉल्व, मतलब ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, लेट्स अप्लाई माइनस बी प्लस माइनस वाला डिस्क्रिमिनेंट वाला, राइट? सो माइनस बी विल बी 1 प्लस, सॉरी 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू 15, राइट, अपॉन 4. So this will give me 1 plus minus under root 4 into 2 is 8, 8 into 15 is 120, 121 upon 4, right? Which will give me 1 plus 11 by 4 and 1 minus 11 by 4. So my roots will be 3 and minus 5 by 2. Now I am asked, क्वेश्चन में पूछा है सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज, तो बस 3 और माइनस 5 बाई 2 को ऐड करना है. 3 माइनस 5 बाई 2 को ऐड किया तो आंसर विल बी 1 बाई 2, विच इज माई फाइनल आंसर. इम्पोर्टेंट लॉजिक यही था. इवन, अगर ये इवन आता, जीरो के अलावा कुछ भी होता, प्लस ऑड, है ना, तो दिस कैन नेवर बी इवन, दिस विल नेवर बी इक्वल टू एन इवन नंबर. सो ये जीरो के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता, राइट? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 50 having exactly two distinct factors other than 1 and itself. Okay, दो distinct factors हैं other than 1 and the number itself. That clearly, बहुत सिंपल लॉजिक लगाओ, एंड इट क्लियरली मीन्स दैट इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम्स, है ना? इट कैन ओनली बी अ प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम्स, राइट? फॉर एग्जाम्पल, टू 2 into 3 क्या होता है? 6. 6 के फैक्टर्स देखो, 1 2 3 एंड 6, राइट? खाली दो ही फैक्टर्स हैं 1 और 6 के अलावा. सिमिलरली आई विल गो 2 into 5, 2 into 7, 2 into 11, 2 into 13, right? 17, 19, 23. Now 29 में नहीं लूंगा because 2 into 29 is 58. That is more than 50. I have to find numbers less than 50. Right? So 2 के साथ कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 numbers यहाँ से आए. Similarly, let's go to 3. 3 into 5 into 7 into 11 into 13. Now 3 into 17, next prime is 51, which is again outside my possible values. So 3 में 4 numbers और है ना? Next, let's go to 5. 5 into 7 is 35. If I do 5 into 11, the next prime will be 55. More than 50, तो मैं वो नहीं ले सकता, तो 5 में 1 आया. ठीक है, दिस वॉज द इम्पोर्टेंट इजी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. अब इसमें क्या ट्रिक थी? कुछ और नंबर्स होंगे, है ना, सम मोर नंबर्स आर देयर. कैसे? व्हाट अबाउट 8, है ना? 8 इज व्हाट? 8 के फैक्टर्स देखो तो 1 2 4 8 आए एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, है ना? तो 8 इज व्हाट? 2 क्यूब, है ना? 2 क्यूब में कितने फैक्टर्स आएंगे? 3 प्लस 1, यानी मुझे 4 फैक्टर्स वाले नंबर ढूंढने हैं बेसिकली, राइट? सो 8 और 3, 2 क्यूब आ जाएगा 8. 3 क्यूब इज व्हाट? 27. तो 8 और 27. इफ आई टेक नेक्स्ट प्राइम का क्यूब, 5 क्यूब 125, वो तो बाहर चला गया, सो आई वोंट टेक दिस. सो
2 cube and 3 cube. So total numbers 8 plus 4 plus 1 plus 1 plus 1. Total 15 numbers are there. The other way to solve this is I can say if there are two factors other than the number itself, that means there are total four factors, right? So I can write the number can be of the form p raised to 3 or it can be of the form p raised to 1 into q raised to 1, right? Where p and q are prime numbers, है ना? सो p रेस टू 3 के दो नंबर्स आए, 2 क्यूब एंड 3 क्यूब, एंड इसके हमारे पास ऊपर के नंबर्स आए थे 13 नंबर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइम लेस देन 15. So my final answer is 15, 1, 5, 15. Okay. So this next question is very interesting. अब इस बार आई एम लखनऊ ने जो पेपर बनाया है, कौन पीपल आर सेइंग इट वाज टफ, है ना? व्हाट आई फील वाज इट्स नॉट टफ. देयर वाज वन इंटरेस्टिंग लॉजिक, वन इंटरेस्टिंग क्लू दैट इफ यू कैच, तो क्वेश्चन बहुत इजी था. लाइक दिस क्वेश्चन सीम्स वेरी हार्ड, राइट? बट एक इंपॉर्टेंट लॉजिक एंड ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है. लेट्स सी व्हाट दैट इज. ओके, we'll start normally log of root 3 log base root 3x plus log base x log 25 base x. तो 25 को I can write 5 square and 5 square का square बाहर आ जाएगा, it will become 2 log 5 base is x. Similarly 0.008 is 0.2 का cube, है ना? So I can write it as 3 log 0.2 base is x, and this is equal to 16 by 3. And now the important step here, है ना? 0.2 0.2 is nothing but 1 by 5. The people who got got this, उनके लिए ये बहुत इजी हो जाता अभी क्वेश्चन. खाली ये एक लॉजिक पकड़ना था, एक फंडा, एंड ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता. ठीक है, लॉग ऑफ रूट 3x उसको ऐसे कैसे रहने देंगे? वी डोंट वांट टू डू एनीथिंग टू दैट, राइट? log 1 by 5, right? Log 1 by 5 can be written as log 1 minus log 5. Log की properties, log a by b is equal to log a minus log b. Log 1 is 0, है ना? Minus log x5, यानी this will be minus log of 5. So next step, 2 log 5 upon minus 3 log 5 is equal to 16 by 3. अब इधर log 5 कट गया, है ना? अब सिंपल हो गया है पूरा क्वेश्चन. ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट स्टेप था विच इज 0.2 इज इक्वल टू 1/5. ये जिसको स्ट्राइक हुआ उसका एक क्वेश्चन हो गया, है ना? चलो आगे देखते क्या हो रहा है. सो दिस बिकम्स लॉग रूट 3x, सॉरी -2/3 इज इक्वल टू 16/3. अगर -2/3 उधर चला गया, लॉग रूट 3x इज इक्वल टू 18/3, और विच इज नथिंग बट 6. सो नाउ हाउ डू यू ओपन लॉग, हाउ डू यू रिमूव लॉग? log says what power of the base is my number, है ना? So sixth power of base is my number, or I can say x is equal to 3 cube, right? Now the next part of the question, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है ना? क्योंकि क्वेश्चन पूछा कुछ और है. Let's see what the question is asking. क्वेश्चन पूछ रहा है log base 3 3x स्क्वायर निकालना है ना? log base 3 3x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, राइट? सो आई कैन राइट log बेस 3 3 इंटू एक्स स्क्वायर के लिए मैं दो बार 3 डाल देता हूँ. बेस 3 है, ऊपर 3 की पावर 7 आ गई. सो माई आंसर विल बी 7. दिस इज माई फाइनल आंसर, राइट? इंपॉर्टेंट स्टेप एक ही था इस बार हर क्वेश्चन में. कैट में आई एम लखनऊ ने यही किया है. इफ एक इम्पॉर्टेंट स्टेप आपको पकड़ में आ गया तो क्वेश्चन वॉज सॉल्वेबल विद इन 45 टू सेकेंड्स टू 1 मिनट. ठीक है, खाली एक वो ट्रिक आपको पकड़नी थी. ऑलराइट, ऑलराइट. द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, है ना? चलो, प्राइस ऑफ प्रेशियस स्टोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेट. प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेट, है ना? और आई कैन से प्राइस इज ऑल टू के डब्ल्यू स्क्वायर. डन.
सीधा एज अ प्रेशर स्टोरिंग गोइंग 18 यूनिट्स, ठीक है। तो उसका प्राइस तो हो जाएगा 18 का स्क्वायर यानी 324 के। डन। शी ब्रेक्स इट इनटू 4 पीस ईच हैविंग अ डिस्टिंक्ट इंटीजर वेट। ओके, डिस्टिंक्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। Difference between highest and lowest possible values of total price of 4 pieces will be 288,000. Okay, so let's break down the sentence, है ना। पहले तो देखते हैं हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू कब होगी। हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू, है ना, बेसिकली के आगे का मैंने 18 को 4 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, है ना, एंड देन इनके स्क्वायर्स को ऐड कर दिया, राइट। तो इसमें हाईएस्ट कब होगा, जब एक नंबर का स्क्वायर हाई, सी, वन, 1 + 2 + 3, है ना। और इफ आई से 3 स्क्वायर, क्या बड़ा है। और इससे भी अच्छा, लेट्स यूज समथिंग एल्स। ओके, लेट्स सी, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर, अगर ये दो चीजें हैं, इनको ऐड करूँ तो क्या आएगा। 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर, 1 + 4 + 9, यानी 14। बट 5 स्क्वायर इट सेल्फ इज 25, राइट। तो मैंने भले तीन के स्क्वायर्स को ऐड किया, बट एक उससे बड़ा नंबर, और इवन नॉट इवन 4 5 स्क्वायर, अगर मैं 4 स्क्वायर भी ले लेता तो भी वो 16 आता है, विच इज ग्रेटर देन 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, राइट। तो कभी भी मैक्सिमम वैल्यू के लिए मुझे बेस मेरा बड़ा रखना है, स्क्वायर अपने आप सबसे बड़ा आएगा, है ना। सो मान लो लास्ट पार्ट मुझे सबसे बड़ा रखना है, तो मैं नीचे से चालू करूंगा, 1 से 2 3, लेट्स से द वेट ऑफ द फर्स्ट 3 pieces are 1 2 and 3, बिकॉज डिस्टिंक्ट इंटीजर वेट बोला है, राइट। तो लास्ट पीस का वेट कितना होगा, 18 -1 -2 -3, 18 - 6 यानी 12। सो व्हेन आई ऐड दीज, इनका स्क्वायर करके ऐड करूंगा, है ना, तो 1 + 4 + 9 + 144, एंड के दिस विल बी द प्राइस, विच इज नथिंग बट, कितना आ रहा है, 154, 158 के। दिस शुड बी माई हाइएस्ट एंड लॉजिकली इट इज, है ना। लेट्स सी लोएस्ट में क्या होगा। लोएस्ट में आई, all the weights will be near each other. Either there was an extreme, in lowest I'll do everything near each other. This was the important logic. Highest में कैसे डिवाइड होता एंड लोएस्ट में कैसे डिवाइड होता, है ना। डिवाइड बाय 4 कर दूंगा तो 4.5। ओके, लेट्स से 3 4 5 6, है ना। 3 स्क्वायर इज 9, 20, 9, 16, 25 एंड 36। इफ आई डू द टोटल प्राइस ऑफ लोएस्ट, है ना, लोएस्ट प्राइस विल बी 25 + 25 50 एंड 36, 86 के, एंड दिस इज प्राइस हाईएस्ट। देखो क्लियरली दिख रहा है ये ज्यादा है, 158 के। तो अगर बड़ा नंबर है तो उसका स्क्वायर मुझे बहुत बड़ा आंसर देगा, रादर देन चार छोटे स्क्वायर्स का सम। ओके, नाउ अब हाईएस्ट माइनस लोएस्ट उन्होंने बोला है इस क्वेश्चन में। हाईएस्ट माइनस लोएस्ट यानी 158 के -86 के इज इक्वल टू 288,000, और 72 के इज 288,000। निकालना क्या है, प्राइस ऑफ ओरिजिनल। ओरिजिनल स्टोन इज दिस 324 के, राइट। के की वैल्यू निकालना चाहो तो भी निकाल सकते हो, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो यूज यूनिटरी मेथड। इफ 72 के इज दिस, देन व्हाट विल बी 324 के, राइट। सो माय आंसर विल बी नथिंग बट 324 into 288,000 upon 72. This is my answer. You can solve it whichever way you like. I can see 4 से कट रहा है, 72 into 4 is 288, right? So 324 into 4 will be 1296 and then 000. So option number 2, 1296,000, right? Important part, highest and lowest कैसे डिटरमाइन करेंगे, राइट। लोएस्ट के लिए ऑल द वैल्यूज विल बी क्लोज टू ईच अदर, हाईएस्ट के लिए वन वैल्यू शुड बी एन एक्सट्रीम, राइट। सो बाकी सबको मैं मिनिमम ले लूंगा। डन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल राइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन, Ravi is driving at a speed of 40 kilometers per hour on a road. Vijay is 54 meters behind Ravi, okay, and driving in the same direction. Okay. Ashok is driving along the same road from the opposite direction at a speed of 50 kilometers per hour and is 22 25 meters away from Ravi.
speed in kilometers per hour at which Vijay should drive so that all three cross each other at the same time. Okay, तो एक रोड इमेजिन कर लेते हैं, है ना? सॉरी, let's say there's a road. Okay, Vijay is here. Sorry, Ravi is here. Vijay is here. This distance is 54 meter, and Ashok is coming from this side. है ना? They both are going this side. Ashok is coming from the opposite direction. Ashok and Ravi के बीच का distance is 225 meters. Right? I know Ravi की speed is 40 kilometers per hour. I know Ashok का speed is 50 kilometers per hour. Right? I don't know Vijay's speed. That is what I have to find. Now for them to meet, or for all three of them to meet at the same time, right? All three cross each other at the same time. क्या होगा? जितनी देर में विजय रवि को कैच करेगा, उतनी ही देर में अशोक को भी रवि को कैच करना है, राइट? सो एक इक्वेशन बन रही है यहाँ से, है ना? वी आर इन दोनों को, व्हाट विल बी द टाइम टेकन फॉर देम टू मीट? दैट विल बी डिस्टेंस बिटवीन देम अपॉन स्पीड ऑफ रवि, सेम डायरेक्शन, सो माइनस स्पीड ऑफ विजय, right? And what will be the time taken for Ravi and Ashok to meet? Distance between them is 225. Opposite direction, so speed will be added, right? These two timings should be equal so that they all three cross each other at the same time. बस इक्वेशन बन गई. अब इस क्वेश्चन में एक पार्ट है विच इज 54 meters and 40 kilometers per hour. यूनिट सेम नहीं है ना? So rather than making unit same अभी, है ना, before 40 into 5/18 करके fraction में घुसने से अच्छा, let's say this is 54 upon speed of Ravi is what? 40 minus speed of Vijay into 5/18. डायरेक्ट ऐसे भी तो कर सकता हूँ. And similarly this is 225 upon speed of Ravi यानी 40 plus 50 into 5/18. I can do it like this. 5/18 will get cancelled. So from here I get 54 upon 40 minus speed of Vijay is equal to 225 upon 90. बस इसको सॉल्व करना है. वन वेरिएबल वन इक्वेशन, वेरी इजी, है ना? 225 into 40 minus s speed of Vijay is equal to 54 into 90. 9 से जाएगा तो 10, 9 से जाएगा तो 25, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं. 5 से जाएगा तो 2 एंड 5 से जाएगा तो 5. Right, so 40 minus SV is equal to 54 into 2 upon 5, right? 40 minus speed of Vijay is equal to 54 into 2 is 108, divided by 5 is 21.6. So speed of Vijay will be just a second, प्लस माइनस का कहीं पे तो मिस्टेक किया है हमने. Oh, okay, my bad. Here it will be SV minus SR, because for Ravi, Vijay to catch Ravi, speed of Vijay should be more, right? So this will be SV minus 40, not 40 minus SV, SV minus 40. विजय की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए 40 से, तभी वो कैच कर पाएगा. That means this is SV minus 40, this is also SV minus 40. And then 40 goes that side, that means it becomes 61.6. Speed of Vijay should be more, right? All right, this question probably the easiest question you could get in a CAT exam. बहुत ही simple question. Minu purchases a pair of sunglasses at 1000. Minu ने 1000 में खरीदे, right? And then sells to Kanu at a 20% profit. यानी 1200 में बेच दिए. So profit is of basically 200. This is my profit, right? Kanu sells it back to Minu at a 20% loss. Now Minu के लिए new cost price, again next cost price is 960, 20% less from what? 1200 का 20% less, right? Then she sells it to who? तनु को उसने sell कर दिया at some price, I don't know what, right? But the next line says total profit made by Minu from all her transaction is 500, right?
पहले ट्रांजैक्शन में 200 का आ गया प्रॉफिट, टोटल 500 है, तो इस ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट शुड बी 300, राइट। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, बस अब ये परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज मेड बाय मीनू व्हेन शी सोल्ड द पेयर ऑफ सनग्लासेस टू तनु। प्रॉफिट हुआ 300 रुपए का, कॉस्ट था 960। इससे इजी क्वेश्चन कैट में नहीं आ सकता। व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट एन आंसर विच इज 31.25%। इससे इजी क्वेश्चन कैट में आपको नहीं आएगा। फ्री के मार्क्स थे क्वेश्चन। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so this question was one of the, I wouldn't say very hard, but yeah, difficult question और टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है ना। मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत थे इधर। Let's see, pipe A and C are fill pipes. Okay, A and C are fill pipes. B is a drain pipe. B empties the full tank in 1 hour less than the time taken by pipe A to fill the tank. Okay, let's say A, B, time taken for them is, अगर A का time taken is X, then B का time taken is X minus 1. Okay. A, B, C are turned on together. Empty tank is filled in 2 hours. When A, B, C are taken together, empty tank is filled in 2 hours. B and C are turned on together. Tank is empty. B is turned off after 1 hour. C takes another 1 hour 15 minutes. ओके, ठीक है। चलो पहले तो इससे अपन थोड़ी चीजें निकाल लेते हैं। ए का टाइम टेकन इज एक्स, बी का टाइम टेकन इज एक्स माइनस वन, ए प्लस बी प्लस सी का टाइम टेकन इज 2। लेट्स से माई टोटल वर्क टू बी डन इज, इन सबका एलसीएम यानी 2x इंटू एक्स माइनस वन। सो द रेट ऑफ ए विल बी 2 इंटू एक्स माइनस वन। रेट ऑफ बी विल बी 2x, नो इट विल बी माइनस 2x बिकॉज बी इज अ ड्रेन पाइप, राइट। लेट्स से कहीं इधर सी है, उसका हम लोग रेट ऑफ वर्क वाई ले लेते हैं, टाइम टेकन पता नहीं मुझे, राइट। दिस टोटल है ना, दिस टोटल शुड बी इक्वल टू 2 into x minus 1 minus 2x plus y, but they should also be equal to x into x minus 1. Why? Because total work is 2x into x minus 1, time taken is 2, that means the rate is x into x minus 1, right? A plus b plus c का total should be equal to x into x minus 1। बस इधर से मुझे y की एक वैल्यू मिल जाएगी in terms of x, right? 2x will get cancelled, y is equal to x square minus x plus 2, right? नाउ द नेक्स्ट, अब आगे की लाइन पढ़ते हैं, है ना। नाउ बी एंड सी आर टर्न ऑन टुगेदर व्हेन टैंक इज एम्प्टी, राइट। बी इज टर्न्ड ऑफ आफ्टर एन आवर, सो बी स्टेज ऑन फॉर 1 hour, है ना। बी स्टेज ऑन फॉर 1 hour एंड सी 1 hour तो था ही, सी टेक्स अनदर 1 hour 15 minutes, यानी 1 hour 15 minutes यानी 5/4, और इट टेक्स अ टोटल ऑफ 2 hours 15 minutes आई कैन से, राइट। एंड उसमें वापस से टैंक भर गया, है ना। This is equal to total work again. So B in 1 hours and C in 2 hour 15 minutes is nothing but 9/4 hours is equal to work. B in 1 hour does minus 2x. C का rate of work is x square minus x plus 2. Total work is 2x into x minus 1. And okay, this multiplied by 9/4 also. Minus 2x plus 9/4 x square minus x plus 2 is equal to 2x square minus 2x. Minus 2x will get cancelled. 9x square minus 9x plus 18 is equal to 8x square. सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। x square minus 9x plus 18 is equal to 0. Product is 18, 6 into 3 and 6 plus 3 is 9. Right, so x minus 6 and x minus 3 equal to 0, which gives me x is equal to 6 और 3। दो वैल्यूज आई, बिकॉज लास्ट लाइन अभी बाकी है। लास्ट लाइन क्या बोल रहा है, इफ पाइप ए कैन फिल द एम्प्टी टैंक इन लेस देन 5 hours, पाइप ए का टाइम इज एक्स, एक्स शुड बी लेस देन 5 बोला है, दैट मीन्स एक ही पॉसिबल वैल्यू, एक्स की वैल्यू 3, राइट। अब एक्स की वैल्यू 3 आ गई, माई वर्क विल बी 2 into 3 into 2 यानी 12 यूनिट्स ऑफ वर्क है।
सी का रेट क्या आ रहा है? सी का रेट मैंने यहाँ पे निकाला था, x² - x + 2 यानी 9 - 3 + 2, इट्स नथिंग बट 8, राइट? सो सी को टाइम कितना लगेगा? टोटल वर्क इज 12, रेट इज 8, सो टाइम टेकन इज इक्वल टू 12/8 और 1.5 आवर्स। आंसर पूछा है मिनट्स में, 1.5 आवर्स यानी 90 मिनट्स। So like I said, this was a time consuming question. It was not hard question. It was a time consuming question, है ना? एंड प्लस माइनस की गलती बहुत हो सकती थी, जैसे यहाँ पे -2x अगर नहीं लिया, खाली 2x लिख दिया, तो देयर वाज अ वेरी गुड चांस दैट एडिशन में भी आप +2x लिख देते। वो ड्रेन पाइप का माइनस होता है, वो याद नहीं आता, है ना? राइट? सो आंसर इज 90 मिनट्स। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल राइट, इन अ कंपनी 20% of the employees work in the manufacturing department. Okay, मैन्युफैक्चरिंग में 20% है। Total salary obtained by all manufacturing employees is 1/6 of the total salary obtained by all employees in the company. ठीक है, तो कहीं पे सब जगह रेशियो की बात हो रही है, व्हाई नॉट टेक लेट्स से एम्प्लॉयज वैल्यूज अज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से एम्प्लॉयज आर 100 एंड टोटल सैलरी इज 600, राइट? सो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में 20% एम्प्लॉयज हैं, यानी 20 एम्प्लॉयज हैं, उनको सैलरी मिल रही है 100, 1/6 ऑफ द टोटल सैलरी, यानी एवरेज सैलरी हो गई 100/20, विच इज नथिंग बट 5। जो रेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें बाकी के बचे हुए 80 एम्प्लॉयज हैं, उनको बाकी की बची हुई सैलरी 600 - 100 500 मिल रही है। सो उनकी सैलरी हो गई 500/80, यानी 25/4। बस ये रेशियो, बट इन अ बेटर टर्म्स। सो 5:25/4 इज नथिंग बट, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो तो 20:25, एंड डिवाइड बाय 5 कर दो तो 4:5। सो माई आंसर इज 4:5। अगेन वन ऑफ द इजियर क्वेश्चन ऑफ कैट, है ना? डायरेक्ट क्वेश्चन थे, सिंपल वैल्यूज अज्यूम करनी है, 100 600, डायरेक्ट आंसर आ रहा है। डन? ऑल राइट, सो दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, okay, let's read the question first. Anil borrows 2 lakh rupees at an interest of 8% per annum, compounded half yearly. Important. Okay. He repays 10320 at the end of first year. Closes loan by paying the outstanding amount at the end of third year. Okay. Second year कुछ भी नहीं कर रहा. Total interest paid over 3 years is nearest to. Okay. अब नियरेस्ट टू बोला है, ठीक है? तो अब इस क्वेश्चन को करने की हमारे पास दो मेथड्स है, ठीक है? एक मेथड है जिसे हम एग्जैक्ट आंसर ट्राई कर फाइंड करने का ट्राई करें, है ना? उसमें पहले मैं 1 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा, फिर उसमें 10320 माइनस करूंगा, फिर 4 साल, नेक्स्ट 2 इयर्स का इंटरेस्ट के बाद क्या अमाउंट बचता है वो निकालूंगा, नेक्स्ट 2 इयर्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा। दैट इज माई मेथड टू फाइंड इट, फाइंड द एग्जैक्ट आंसर। ओके, ऑप्शंस अगर मैं देखूं, ऑप्शंस आर नॉट क्लोज, राइट? 33,000, 40,000, 45,000, 51,000, ऑप्शन थोड़े दूर दूर हैं। सो आई थिंक अप्रोक्सीमेशन से भी मैं ये क्वेश्चन कर पाऊंगा। ओके, लेट्स सी हाउ। 2 lakhs, है ना? पहले साल के लिए तो मुझे निकालना ही पड़ेगा दोनों केसेस में, है ना? इंटू 1 + 4/100, 8% पर एनम है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली में हाफ हो जाएगा, राइट? 4 एंड कंपाउंडेड ट्वाइस इन अ ईयर। सो 1 साल के बाद विल बी 2 lakh इंटू 104/100 इंटू 104/100। When you solve this, you will get 216,320. Right. Right. So first year का इंटरेस्ट इज 16320। डन, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना? नाउ नेक्स्ट पार्ट इज आई पेड 10320, है ना? सो आई एम लेफ्ट विद 2,06,000। राइट, हियर कम्स द अप्रोचेस। अब इधर से मेरे पास दो मेथड है ना? कि मैं नेक्स्ट 2 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं with a huge calculation of 104 raised to 4, है ना? ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर ऑब्वियसली आई कैन यूज कैट के एग्जाम में, बट सेकेंड अप्रोच लेट्स सी, है ना? फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट ये आ गया, है ना? फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल था ये 2 लाख। सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल मेरा 2,06,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह तो सब सेम है ना? सेकेंड ईयर में माई प्रिंसिपल इज 2,06,000,
प्रिंसिपल अमाउंट थोड़ा बढ़ गया तो इंटरेस्ट भी सेकेंड ईयर में विल बी मोर देन 16,320। सिमिलरली थर्ड ईयर में भी इट विल बी मोर देन 16,320 क्योंकि प्रिंसिपल वापस बढ़ जाएगा, है ना, कंपाउंडिंग है। सो अल्टीमेटली माई आंसर शुड बी ग्रेटर देन समवेयर 49,000 से भी बड़ा होना चाहिए, है ना। तो 33 चला गया, 40 चला गया, 45 भी चला गया, आंसर इज 51,311। एग्जैक्ट आंसर क्यों फाइंड करना है ना। मेरा सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट नॉट इवन इक्वल टू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 16,320 एंड दिस इज ऑल्सो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 16,320, राइट। तो माई फाइनल अमाउंट इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 49,000। 49,000 से कितना बड़ा, उससे क्या फर्क पड़ता है, आंसर तो एक ही है, राइट। सो एग्जैक्ट आंसर फाइंड करने की जरूरत नहीं थी। एग्जैक्ट आंसर इफ यू वांट टू फाइंड इट विल बी 104/100 रेस टू 4 -2,06,000। ये करोगे एंड देन इसमें 16,320 फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट जोड़ोगे, तब मेरा फाइनल आंसर आएगा, विच इज सच ए ह्यूज कैलकुलेशन, है ना। सो लेट्स नॉट डू दैट, टाइम बचाना है ना। 30 सेकेंड्स में क्वेश्चन कर सकते थे इफ यू जस्ट अप्लाई सिंपल बेसिक लॉजिक ऑफ इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट तो बढ़ेगा ही, अगर प्रिंसिपल बढ़ा है तो इंटरेस्ट बढ़ेगा ही, राइट। ऑल राइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन। Certain sum amount of money is divided equally among n persons. Each one receives 352। यानी टोटल मनी तो सीधा पता चल गया 352 n है, लिख देता है। However, if two person receive 506 each and remaining amount is divided equally among the other person, each of them receive less than or equal to 330 maximum possible value of n। इसमें से मैंने पहले दो लोग को 506 दे दिए, है ना, एंड देन फिर इक्वली डिवाइड कर दिया रिमेनिंग। रिमेनिंग मतलब n-2, दो लोग को तो मिल चुका है, n लोग थे उसमें से दो लोग को मैं अमाउंट दे चुका हूँ, रिमेनिंग लोग में डिवाइड कर दिया। दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू 330, राइट। सो 352 -1012 352 n अपॉन n-2 लेस देन इक्वल टू 330। एक इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। 352 n -1012 is less than equal to 330 n -660। Let's take n terms on the same side. Numbers on the same side will become 22n is less than equal to 1012 ऐड कर दूंगा यानी 352, and 352 is it divisible by 22? Yes, it is. So 22 1 and 132 6, 22 16 is 352, so n is less than equal to 16। एंड वही पूछा था, मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल वैल्यू ऑफ n इज 16। फाइनल आंसर। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, एक इक्वेशन बनाती है, एक इनइक्वालिटी सॉल्व करनी थी, नथिंग मेजर इन दिस क्वेश्चन। कोई नया टॉपिक नहीं, कोई ट्रिक नहीं। डन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन। Jayant bought a certain number of white shirts at the rate 1,000 per piece, certain number of blue shirts at the rate 1,125 per piece. Okay. He set a fixed market price which was 25% higher than the average cost of all shirts। एवरेज कॉस्ट ऑफ ऑल शर्ट्स, ओके, ठीक है। ही सोल्ड ऑल द शर्ट्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, मेड अ प्रॉफिट ऑफ 51,000। ओके, ही इफ ही बॉट बोथ कलर ऑफ शर्ट, मोर मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट्स, ठीक है। मान लो 1,000 वाली शर्ट्स एक्स हैं एंड 1,125 वाली शर्ट्स वाई हैं। आई कैन से कॉस्ट प्राइस जो उसका लगा दैट इज 1,000x प्लस 1,125y, राइट। डन, दिस इज माई कॉस्ट प्राइस। नाउ for selling price, है ना, first I put a mark price। Mark price is 25% higher than the average cost of all shirts, है ना, 25% higher than the average cost। लॉजिकली देखो, अगर मान लो दे you have three numbers, है ना, 8 12 and 20, 8 12 and 16। Average is what? 12। 12 में 25% higher is what? 12 into 5/4 और 15, राइट। मतलब मैंने सारी चीजें 15 में बेची, है ना। बट इफ आई
increase them individually by 25%, right? This will become 10, this will become 15, and this will become 20. अब इनका एवरेज लूँ तो भी इट्स 15, राइट? सो द ऑर्डर डजेंट मैटर, क्या पहले 25% इंक्रीज करके एवरेज लो, कि पहले एवरेज लेके फिर 25% इंक्रीज करो, राइट? सो आई जस्ट डू 1125y into, sorry, 5/4, 25% इंक्रीज डायरेक्टली, राइट? इतने में उसने बेचा नहीं, इतना मार्क प्राइस था, उस पर उसने 10% डिस्काउंट दिया, नहीं, इंटू 9/10, राइट? दिस इज माई नाउ, दिस कंप्लीट थिंग इज माई सेलिंग प्राइस. दिस गिव्स मी अ प्रॉफिट ऑफ 51,000, यानी प्रॉफिट यानी सेलिंग प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस होती है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. सो दिस विल बी 1000x प्लस 1125y प्लस 51,000, राइट? फ्रैक्शंस में इसके लिए यूज कर रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए, और नॉट कैलकुलेशन इजी हो जाए बट आंसर्स एक इक्वेशन बन जाए. बेसिकली मुझे बार बार अलग अलग इक्वेशन नहीं बनानी. उसमें भी देखो ना, अभी तो मैजिक होगा. 9 इंटू 1125, और 9 इंटू 1000x प्लस 1125y इज इक्वल टू, नीचे बचा 4 और 2 यानी 8. 8 इंटू 1000x प्लस 1125y इधर तक ही रखते हैं, प्लस 51,000 इंटू 8 कर देते हैं. ठीक है, 8 अलग से लिख दिया. अब ये 9 इंटू सम ब्रैकेट एंड 8 इंटू सम ब्रैकेट, तो अगर मैं इसको शिफ्ट करूं, इट विल बिकम 9 - 8, यानी 1 इंटू सेम 1000x प्लस 1125y. खत्म हो गया फ्रैक्शन. इज इक्वल टू 51,000 इंटू 8. दिस गिव्स मी 1000x प्लस 1125y इज इक्वल टू 51,000 इंटू 8. लेट्स सिंप्लीफाई, लेट्स डिवाइड बाई 125, है ना? 125 8 इज 1000, 125 9 is 1125, and when I divide this by 125, I'll get 51 into 8, right, which is 408, or 408, I'll get 408. Done. So my equation is 8x plus 9y is equal to 408 into 8 भी कर ही देते हैं, 3264, right? 8x plus 9y is 3264. Now मुझे निकालना क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स, राइट? तो जिसका कोएफिशिएंट कम है उसमें मैं मैक्सिमम डालना चाहूंगा, तो मुझे x को मैक्सिमाइज करना है, दैट मीन्स y को मिनिमम रखना है ना? मिनिमम 0 तो रख नहीं सकता. लेट्स सी, दिस इज क्लियरली डिविजिबल बाय 8, है ना? 408 इंटू 8 किया, राइट? सो इसमें मैं नेक्स्ट 8 का मल्टीपल सब्ट्रैक्ट कर दूं. व्हाट इफ आई पुट y इज इक्वल टू 8, आई गेट 8x प्लस 72 इज इक्वल टू 3264, which gives me 8x is equal to 3192, x is equal to 399. This will be my maximum x, right? इससे ज्यादा अब x की वैल्यू नहीं आ सकती, y भी इतना कभी नहीं आएगा, बिकॉज जिसका कोएफिशिएंट कम होगा उसकी वैल्यू मैं ज्यादा ले सकता हूँ, है ना? सो x की वैल्यू 399, y की वैल्यू मैंने 8 ली थी, दैट मीन्स x प्लस वाई is equal to 407. This is my final answer. एक बार आप इधर पहुंच गए, देन दिस इज अ स्पेशल इक्वेशन, राइट? दिस इज अ स्पेशल इक्वेशन, वन इक्वेशन टू वेरिएबल्स. सो मैक्सिमाइज जिसको करना है उसको सबसे बड़ा रखना है, दूसरे नंबर से चालू करो, राइट? Okay, so this question, a container has 40 liters of milk. 4 liters are removed, replaced with 4 liters of water. Replacing of 4 liters of the liquid with an equal amount of water is continued repeatedly. मतलब 4 लीटर लिक्विड हटा रहे हैं, 4 लीटर वाटर डाल रहे हैं, कंटिन्यूसली हो रहा है, ठीक है? सो लेट्स गो थ्रू दिस क्वेश्चन. बहुत इजी क्वेश्चन है, आई एम श्योर कैट में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करके आए हैं, है ना? 40 लीटर्स ऑफ मिल्क, 4 लीटर्स आर रिमूव. बेसिकली मैं 10% मिल्क हमेशा निकाल रहा हूँ, है ना? 10% लिक्विड हमेशा निकाल रहा हूँ. पहले मिल्क और वाटर 40 और 0 था, मैंने 4 लीटर्स मिल्क हटा के 4 लीटर्स वाटर ऐड कर दिया, नहीं?
अब नेक्स्ट टाइम मैं जब 4 लीटर्स निकालूंगा तब इसमें से 3.6 जाएगा एंड इसमें से 0.4 जाएगा, राइट, बिकॉज ऑफ द रेशियो। एंड देन इसमें 4 लीटर्स और ऐड हो गया। सो बेसिकली दिस विल बिकम 32.4 एंड दिस विल बिकम 7.6। इफ यू थिंक लॉजिकली, मैंने यहाँ पे भी मिल्क का 10% निकाला, मैं लिक्विड का 10% निकाल रहा हूँ तो मिल्क का भी 10% ही निकालने वाला है। रेशियो कुछ भी हो, निकलने तो 10% वाला ही है, राइट। सो फर्स्ट केस में 10% निकाला तो 36 आ गया, नेक्स्ट केस में और 10% निकाला तो 32.54 आ गया। सो बेसिकली आई हैव टू फाइंड 40 × 9/10 स्मॉलेस्ट नंबर। पहली बार कब ऐसा होगा जब दिस वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन द कंटेनर बिकम लेस देन दैट ऑफ वाटर। दिस 40 × 9/10 बिकम्स लेस देन 20, हाफ, कंटेनर का हाफ से कम हो गया, है ना। तो वॉल्यूम मतलब मिल्क का कम हो गया। और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो, 9/10 इज लेस देन 1/2। अब इसके लिए कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो, ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर। और कोई मेथड पता है तो और कोई मेथड भी यूज कर सकते हो। आंसर विल बी n = 7। आई पर्सनली वुड यूज द कैलकुलेटर ऑन द स्क्रीन बिकॉज वेरी सिंपल लॉजिक। अगर 30 सेकंड कैलकुलेटर में वेस्ट करके मेरे को 3 मार्क मिल रहे हैं, एग्जैक्ट आंसर आ रहा है ना, तीन, भले 30 सेकंड 1 मिनट वेस्ट करके, लेकिन मेरे को 3 मार्क मिल रहे हैं तो मैं क्यों नहीं यूज करूँ, है ना। 1 मिनट ये एक्स्ट्रा लगा, लेकिन 3 मार्क डेफिनेटली आए, गारंटीड 3 मार्क आए मेरे। So I definitely use the on-screen calculator, right? So when you solve this, you'll get n = 7। ना कैलकुलेटर में क्या करना है आपको, बार बार 0.9 × 0.9 करते जाना है खाली, और देखना है कब पहली बार 0.5 से कम आएगा। सो दैट विल बी ऑन द 7th टाइम यू डू 0.9, इट विल बी लेस देन 0.5। डन। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्राइंगल इज ड्रॉन विद वर्टाइसेस ऑन द सर्कल सी। एक सर्कल है सी, उस पर ट्राइंगल के वर्टाइसेस हैं। वन ऑफ इट साइड इज अ डायमीटर ऑफ सी। सी का डायमीटर बना लेते हैं, एंड ये उसका एक साइड है। तो अदर दो, ये 2 पॉइंट्स हो गए, मान लो ए एंड बी। द नेक्स्ट पॉइंट विल बी समवेयर ऑन द सर्कल ओनली। लेट्स सी हियर, सी, दिस इज माय ट्राइंगल, राइट। नाउ द अदर टू साइड्स हैव their lengths in the ratio a is to b। let's say this is a, this is b, है ना। If the radius of the circle is r, this is r, then this is also r। Area of triangle is, now बहुत सिंपल लॉजिक, डायमीटर एक प्रॉपर्टी है सर्कल की, डायमीटर ऑलवेज सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सर्कल। बहुत इजी प्रॉपर्टी है ना, सबको याद होनी चाहिए। सो एरिया ऑफ सर्कल तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। सो इट शुड बी नथिंग बट हाफ इंटू ए इंटू बी, यानी AB/2 होना चाहिए। बट ऐसा तो ऑप्शन कहीं है नहीं। सो इस क्वेश्चन में उन्होंने कुछ नहीं किया, खाली ऑप्शंस के साथ खेला है ना। व्हाट इज वन अदर इक्वेशन आई कैन मेक आउट ऑफ दिस ट्राइंगल? सिंपल पाइथागोरस थ्योरम आई कैन यूज, है ना। सो लेंथ ऑफ साइड A² प्लस B² शुड बी इक्वल टू हाइपोटेनियस यानी 2r का स्क्वायर, और A² प्लस B² शुड बी 4r², राइट। So if I multiply this by 4r² upon A² plus B², I am doing nothing but multiplying by 1 because 4r² is ultimately equal to A² plus B², right? So अब यहाँ पे 2 कट जाएगा, है ना। So this will give me 2abr² by A² plus B², which is option 1। कुछ भी नहीं, खाली ऑप्शंस में खेला है उन्होंने, है ना। सिंपल लॉजिक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया सेम चीज को, है ना। डन। बहुत इजी क्वेश्चन। ऑलराइट, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। इन अ रेक्टेंगल ABCD, AB is equal to 9 and BC is equal to 6। चलो ABCD, AB is 9, चलो ABCD, BC 6 यानी ब्रेथ बेसिकली 6 है मेरी, ठीक है। चलो 2 points, P and Q are 2 points on BC, P and Q are 2 points on BC such that areas of the figure ABP एक ट्राइंगल है, APQ एक ट्राइंगल है, एंड AQCD, हाँ, ये रिमेनिंग का जो क्वाड्रिलेटरल है।
आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ओके, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एरिया ऑफ फिगर ए क्यू सी डी इज इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी पी। तो अगर ए बी पी का एरिया 1 है ना, तो ए क्यू सी डी का एरिया 4 हो जाएगा। सो अगर ये एरिया 1 है, ये एरिया 4 हो जाएगा। एंड सिंस दीज थ्री एरियाज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सिम क्लियर है कि बीच वाला 2 होगा, 1 इंटू 2 इंटू 4, 1 2 एंड 4, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, राइट। चलो, दिस वाज द फर्स्ट स्टेप ऑफ माय आंसर। नाउ for the next step, I have to, what do I have to find? I have to find the ratio of BP, PQ, and QC. Okay. Now, let's consider triangles A, B, P, and triangles A, P, Q. Right? Their height is the same, 6. Ultimately, height तो दोनों की, sorry, 9. हाइट दोनों की सेम है ना। जो भी एरिया का डिफरेंस आ रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द बेस, राइट। सो बेस, इस केस में बेस है पी बी पी, एंड इस केस में बेस है पी क्यू। एरिया का रेशियो इज 1:2, सो बेसिस का रेशियो शुड ऑल्सो बी बी पी अपॉन पी क्यू शुड बी 1/2। सो पहला स्टेप तो आ गया बहुत इजीली, 1/2 ये आ गया, तो आई कैन डेफिनेटली एलिमिनेट ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 तो मेरा आंसर नहीं हो सकता, है ना। 1:1 है, बाकी सब जगह 1/2 फॉलो हो रहा है ना। नाउ लेट्स थिंक अबाउट क्यूसी। क्यूसी कैसे निकालेंगे, है ना, दैट इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट डू आई डू फॉर क्यूसी? ओके, पूरे ट्राइंगल का, सॉरी, पूरे रेक्टेंगल का एरिया विल बी 9 इंटू 6, 54, है ना। दिस इज एरिया ऑफ द एंटायर रेक्टेंगल। नाउ 54 is divided into 3 parts, 1 2 and 4, right? Let's draw a line here, ऐसे डायगोनल। आई एम ड्राइंग अ डायगोनल AC, है ना। ट्राइंगल ABC का एरिया इज व्हाट? हाफ ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। डन। एंड इसमें अब 3 ट्राइंगल्स हैं, दिस दिस एंड द अननोन ट्राइंगल, दिस वन, है ना। ट्राइंगल ABP का एरिया प्लस ट्राइंगल APQ का एरिया प्लस ट्राइंगल AQC का एरिया इज 27। ABP इज टोटल रेक्टेंगल का 1/7, राइट। 1:2:4 में डिवाइड किया था मैंने रेक्टेंगल को, तो रेक्टेंगल के टोटल एरिया का 1/7। सिमिलरली APQ इज रेक्टेंगल के टोटल एरिया का 1/2/7, है ना, प्लस ट्राइंगल AQC इज इक्वल टू 27, राइट। सिमिलर, सो ट्राइंगल AQC विल बी 27 माइनस 54/7 माइनस 54 इंटू 2/7। अगर मैं 27 कॉमन निकाल लूँ, ट्राइंगल AQC का एरिया विल बी व्हाट? 1 माइनस 2/7 माइनस 4/7, और आई कैन से 27 इंटू 1/7, राइट। नाउ दिस एरिया इज, अब वापस से तीनों ट्राइंगल्स कंसिडर करते हैं, है ना। दिस एरिया इज 54 इंटू 1/7, दिस एरिया इज 54 इंटू 2/7, एंड दिस एरिया केम आउट टू बी 27 इंटू 1/7। हाइट अगेन तीनों रेक्टेंगल में सेम है, तो जो भी रेशियो आ रहा है वो बेस की वजह से आ रहा है। 54 इंटू 1/7 को मैं 27 इंटू 2/7 बोल सकता हूँ। सिमिलरली दिस इज 27 इंटू 4/7, एंड दिस इज 27 इंटू 1/7। तो ये अगर एरियाज का रेशियो है, तो बेस का भी यही रेशियो है ना। अगर ये रेशियो है तो 27 हट गया सब में, हाँ, एंड डिनोमिनेटर का 7 भी हट गया, तो क्या आया? 2:4:1, राइट। 2:4:1 इज माई फाइनल आंसर। सो इस क्वेश्चन में एक ये डायगोनल बनाना इंपॉर्टेंट था। बिना डायगोनल के भी ये क्वेश्चन हो सकता है, बट देन विल बी एक्सट्रीमली लेंथी। ओके, सो अ सिंपल कंस्ट्रक्शन ऑफ डायगोनल, 3 ट्राइंगल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो एंड यू गेट योर फाइनल आंसर, राइट। ओके, area of quadrilateral bounded by y-axis, line x is equal to 5, and the lines mod of x minus y minus mod of x minus 5 is equal to 2. This was one of my favorite questions in slot 2.
है ना। डबल मोड, दो सेम इक्वेशन में दो मोड देख के आधे लोग ने क्वेश्चन इधर ही छोड़ दिया होगा, बट इट वॉज अ वेरी इजी क्वेश्चन इफ यू थिंक इट लॉजिकली। तो पहले तो अपन ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लियरली पता चल रहा है ना। दिस इज माय वाई एक्सिस, दिस इज माय एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस तो बन चुकी है, वाई एक्सिस मैंने बना ही लिया। एक्स इक्वल टू 5 की लाइन यहाँ पे कहीं होगी, है ना। दिस इज माई एक्स इज इक्वल टू 5 की लाइन। डन। नाउ इक्वेशन इज मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, है ना, माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 2। तो सिंपल है, देखो, दो पॉइंट्स कहीं वाई एक्सिस पे होंगे, है ना, एंड दो पॉइंट्स कहीं एक्स एक्सिस पे होंगे, आई डोंट नो वेयर, बट दो पॉइंट्स होंगे, है ना, दोनों जो क्वेश्चन, तभी एक क्वाड्रिलैटरल बनेगा, राइट। सिंपल करना है, सबसे पहले मैं एक्स इक्वल टू 5 सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, ठीक है। मॉड ऑफ 5 माइनस वाई, आई एम पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस 5 माइनस 5 इज 0 इज इक्वल टू 2। मॉड ऑफ 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। So 5 minus y can be 2 और 5 minus y can be minus 2. इससे y can be 3 और y can be 7. So this line definitely passes through somewhere here 5 comma 3 and somewhere here 5 comma 7. इस लाइन के दो पॉइंट्स मुझे मिल गए, है ना। सिमिलरली इट विल पास थ्रू y एक्सिस एट सम टू पॉइंट्स, है ना। y एक्सिस पे क्या होता है, x इज इक्वल टू 0 होता है ना। सो लेट्स पुट x इज इक्वल टू 0 नाउ। तो 0 माइनस वाई माइनस 0 माइनस 5 यानी -5 इज इक्वल टू 2। -5 का मॉड लूंगा तो 0 माइनस 5 को यहाँ पे मॉड ऑफ -5 रहने देते हैं, इज इक्वल टू, सॉरी, मॉड ऑफ वाई -5 इज इक्वल टू 2 और मॉड ऑफ -y इज इक्वल टू 7। और आई कैन से -y इज इक्वल टू 7 और -y इज इक्वल टू -7, यानी कि y इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू -7। सो अगेन टू पॉइंट्स आ गए, एक आ गया 0 7 एंड एक आ गया 0 -7, राइट। सो बेसिकली दिस, सॉरी, थोड़ा फिगर अच्छा बना देते हैं। दिस इज माई क्वाड्रिलैटरल, राइट, एंड आई हैव टू फाइंड दिस एरिया नाउ, है ना। ये एरिया मुझे फाइंड करना है, राइट। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक सिंपल कंस्ट्रक्शन, है ना, एक पैरेलल लाइन यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ऑब्वियसली दिस पॉइंट विल बी व्हाट, 0 3। डन। नाउ दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया क्वाड्रिलैटरल को। फर्स्ट ऊपर वाला टुकड़ा इज अ रेक्टेंगल, है ना। दिस इज अ रेक्टेंगल जिसमें लेंथ 5 है एंड ब्रेड 3 to 7 इज 4, यानी 4 × 5 20 रेक्टेंगल का एरिया था, हो गया। एंड नीचे वाला पार्ट इज अ ट्राइंगल, राइट, विथ माई हाइट, है ना, एज 3 to -7 यानी 10। एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाफ इंटू 10 इंटू बेस 5 आएगा, अगेन दिस विल बी 5, है ना। सो दिस इज व्हाट, 25। सो टोटल एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल विल बिकम 20 + 25, यानी कि 45, राइट। डबल मॉड देख के घबराना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना, एकदम लॉजिकल, खाली दो वैल्यूज, एक्स की वैल्यूज डालनी थी दो बार, राइट। 45 इज द फाइनल आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, p² + q² - 29 इज इक्वल टू 2pq - 20 इज इक्वल टू 52 - 2pq। डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ pq - qq। ओके, चलो पहले तो जो चीज़ें निकल सकती हैं हम वो निकालते हैं। पहले लेट्स टेक दीज टू इक्वेशंस, थोड़ा इजी लग रहा है ना। 2pq - 20 इज इक्वल टू 52 - 2pq, और अगेन से 4pq इज इक्वल टू 72 और pq इज इक्वल टू 18। एक चीज़ तो निकल गई। नाउ लेट्स टेक दिस, कोई भी ये दो इक्वेशन ले लेते हैं। p² + q² - 29 इज इक्वल टू 2pq - 20, राइट। और आई कैन से p² + q² इज इक्वल टू 2pq + 9।
and 2pq is nothing but 2 into 18 which is 36, p square plus q square, 36 plus 9 यानी 45. So one equation आ गई pq and second equation आ गई p square plus q square. Now next part, what is, फाइंड क्या करना है, पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज का डिफरेंस. ठीक है, तो पहले तो देखते हैं पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब होता क्या है. व्हाट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब इन फॉर्मूला? इट्स ए माइनस बी, ए प्लस ए बी प्लस, सॉरी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. डन, ये होता है. सॉरी बी स्क्वायर नहीं, क्यू स्क्वायर. डन, दिस इज माई पी क्यू माइनस क्यू क्यू का फॉर्मूला. पी माइनस क्यू, लेट्स लेट इट बी एज इट इज. पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मुझे पता है 45 होता है, पी क्यू मुझे पता है 18 है ना. तो दिस इज 63 इंटू पी माइनस क्यू. None. The value of PQ minus Q cube is 63 into P minus Q. Now what can be the, basically now I have to find maximum and minimum value of P minus Q. ठीक है. So P minus Q कैसे फाइंड करेंगे? What is P minus Q का होल स्क्वायर? Nothing but P square plus Q square minus 2PQ. है ना. So P minus Q का होल स्क्वायर is P square plus Q square, इधर से 45, 2PQ, 2 into 18 is 36. So P minus Q ka whole square becomes 9. So P minus Q becomes 3 और -3. दो वैल्यूज चाहिए मुझे, डिफरेंस निकालना है मैक्सिमम पॉइंट मिनिमम का. राइट, दो वैल्यूज चाहिए. तो पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब मिनिमम है ना. मिनिमम के लिए आई पुट पी माइनस क्यू इज इक्वल टू -3. सो इट बिकम्स 63 into -3 which is 189 minus 189 and maximum will be plus 189. So इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा, 189 minus of minus 189 is nothing but 189 plus 189 will give me 378. Final answer. Right? इस क्वेश्चन में the one thing that should click, right, that should click is this step. P minus Q का होल स्क्वायर करूंगा क्योंकि मैं P माइनस क्यू तक पहुंच चुका हूँ. एंड द सेकेंड थिंग शुड बी 3 and -3 बोथ आर पॉसिबल. दीज टू थिंग्स वर वेरी इंपॉर्टेंट. इन दोनों के बिना ये क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल है. ठीक है, अगर ये दो चीज स्ट्राइक नहीं होती है.